Is it okay? Am I audible? Okay. Thank you. Thank you. So, we are discussing undernutrition. Okay, what we said, undernutrition, it is a major health problem, or we are saying this is major nutrition problem in India. Okay, this is significant problem. Why we are saying this is significant problem? Because it leads to permanent impairment of physical growth. Okay, it can affect mental growth, and this is the condition which can contribute to morbidity as well as mortality. Okay, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, जीआईटी के इन्फेक्शंस है, वो बढ़ने वाले हैं due to undernutrition, and even under 5 mortality will be significantly increased because of undernutrition. Okay, so like in malnutrition we said there are 4 different conditions what we include in malnutrition. तो malnutrition में हमने क्या देखा था? malnutrition में undernutrition हो सकता है, overnutrition हो सकता है, ओके इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो सकती है. तो यहाँ पे भी हमें क्या देखना है? ओके, whenever we are using the terminology undernutrition, it may include underweight, it may include stunting, or it may include wasting. Okay, so stunting is what? This is suggestive of chronic malnutrition, and whenever we are using the terminology wasting, this is suggestive of acute malnutrition. Okay, so nature of undernutrition that we can come to know, okay, whether it is acute or whether it is chronic. Yeah, what is the most important vulnerable group or high risk group? Okay, so whenever we talk about undernutrition, the first thing that should strike to your mind is children. Okay, so children in India, they are having higher risk of undernutrition. Okay, so again, in children our focus should be on under 5. Okay, it should be on under 5. Under 5 children specifically, these are, if we see the distribution, okay, so 29.4%. Okay, and if we again see the percentage of stunting and percentage of wasting, okay, in under 5 age group, तो स्टंटिंग का proportion ज़्यादा है. ओके, दिस contributes to 38.7%. okay, and if we talk about wasting, it contributes to 15.1%. okay, next thing what you can see, if you can recall the last lecture's image of iceberg. okay, तो उसके टिप में हमने ये दो conditions include किए थे. ओके, तो व्हाट वी सेड, क्वैशियोरकर एंड मैरास्मस. क्वैशियोरकर और मैरास्मस का प्रपोर्शन हम देखते हैं तो इट इज वेरी लेस. ओके, सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लेस देन 1%. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लेस देन 1% of undernutrition. Okay, so there are different conditions that we are going to study under the heading undernutrition. Okay, now what happens if there is persistent undernutrition? Okay, if there is persistent undernutrition, and specifically if we find it during the growing phase of children. okay, तो बच्चे हैं growing phase में है, उस टाइम अगर undernutrition persistent रहता है तो उसके consequences, उसके effect क्या रहेंगे? okay, so it may result in short stature. Another important thing what we can see is lower BMI, बॉडी मास इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो ये 18.5 से कम रहेगा. ओके, सो whenever we see adults having a BMI less than 18.5, तो what it is suggestive of? Okay, so this mainly indicates chronic energy deficiency. Okay, तो यहाँ पे whenever we are talking about BMI कम है, 18.5 से कम है, ओके, तो वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू ट्राइबल पॉपुलेशन. ओके, ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर हम देखते हैं, ओके, अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है? ऐसे लोग, ऐसे एडल्ट्स जिनका BMI 18.5 से कम है. ओके, सो दैट परसेंट सिंबल इज रॉन्ग हियर. तो
मेल्स में अगर हम देखते हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन में 40% मेल्स हमें अंडर नरिश्ड मिलेंगे, और विमेन देखते हैं तो 49, ऑलमोस्ट 50% ऑफ विमेन हु आर बिलोंगिंग टू ट्राइबल ग्रुप, ओके, दे आर अंडरवेट। ओके, सो आगे जाके हमें बीएमआई देखना है। ओके, बच्चों में क्या मेजरमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, दैट वी विल सी। Okay, now what is the important reason why this condition is there? Okay, so there is a concept of protein gap. ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पुराना कॉन्सेप्ट है, 1970 में इसे रेकमेंड किया गया था। ओके, तो दैट टाइम व्हाट वी सेड कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट protein energy malnutrition, why it occurs? It occurs due to deficiency of protein. ओके, तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कब रहेगा? जब प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है तो। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सर्वे कंडक्ट किए गए। ओके, तो डाइट सर्वेस कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, व्हाट इट हैज shown, so what these surveys, they are suggestive that the proportion of protein in diet of most of the people is adequate. ओके, तो ये जो सर्वे कंडक्ट किया गया इसमें रिच पीपल भी थे, पुअर भी थे, बच्चे भी थे, एडल्ट्स भी थे, वेजिटेरियन लोग भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। ओके, तो ये सर्वे अभी हमें क्या बताता है कि लोगों का प्रोटीन इंटेक जो है डाइट में वो एडिक्वेट है। ओके, ये पुराना कॉन्सेप्ट है जिससे हमने क्या बोला था, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। बट द न्यू कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो नया कॉन्सेप्ट है वी आर कॉलिंग दिस एज कॉन्सेप्ट ऑफ फूड गैप। ओके, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ फूड गैप। ओके, पहला जो कॉन्सेप्ट था उसे हमने बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटीन गैप। तो यहाँ पे फूड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज, सो दिस कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज सजेस्टिव दैट protein energy malnutrition, when it occurs whenever there is a deficient intake of food. So it occurs because of deficiency of food. Okay, तो food का consumption ही कम है तो protein energy malnutrition होने वाला है। Okay, so right now what we are saying, primary cause of protein energy malnutrition, okay, if there is deficient intake of protein or if there is deficient intake of energy. ओके, तो जो हम फूड ले रहे हैं वो कम है या फिर जितना भी एनर्जी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ओके, सो दैट कैन लीड टू अ कंडीशन प्रोटीन एनर्जी malnutrition or undernutrition. So what we are saying now, primary protein energy malnutrition, it occurs due to कॉन्सेप्ट ऑफ फूड गैप। ओके, तो इनएडिक्वेट इनटेक है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, इट इज कंसर्न विथ बोथ थिंग्स। जो क्वांटिटी है वो इनएडिक्वेट है, ओके, और जो क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो इनएडिक्वेट। ओके, तो जितना चाहिए उतना खाना नहीं मिल रहा है बच्चों को और उसकी क्वालिटी भी एडिक्वेट नहीं है। ओके, सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ quality as well as quantity. Okay, secondly what we can say is infections, another most important factor which contributes to PM or which contributes to undernutrition is infections. So infections like measles, like respiratory infections, okay, और डायरिया है, इंटेस्टाइनल वर्म्स है, वर्म के इन्फेक्शंस है। ओके, सो डिफरेंट इन्फेक्शंस व्हेन इट ऑकर इन चिल्ड्रन, ओके, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, दूसरा जो फैक्टर है, एक तो फूड का इंटेक एडिक्वेट नहीं है, उसके साथ साथ बच्चों को बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस है, ओके, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मालन्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मालन्यूट्रिशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इन्फेक्शन। तो आगे जो चैन, जो VCS साइकिल आप देख रहे हैं वो क्या है, मालन्यूट्रिशन लीडिंग टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन विच फर्दर लीड्स टू मालन्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज
vicious cycle. There is vicious cycle of malnutrition, infection, malnutrition. Okay. मालन्यूट्रिशन की वजह से इन्फेक्शन क्यों होता है? बिकॉज मालन्यूट्रिशन इज द फैक्टर विच अफेक्ट्स immune function of the person. Okay, so since immunity is affected, there is possibility of infection. Now here, this is a malnutrition infection cycle which is given in KPAC. Okay, तो यहाँ पे अगर if we start from the weight loss, okay, you please see the right side. Okay, तो right side हमने पहले क्या बोला है? inadequate intake है. ओके ऊपर का अगर आप देखते हो तो डाइटरी इनटेक कम है. ओके जिसकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ अफेक्ट होने वाला है, वेट लॉस होने वाला है, इम्यूनिटी इन बच्चों का कम होने वाला है. ओके म्यूकोजा डैमेज रहेगा, टू बी स्पेसिफिकली जीआई म्यूकोजा उनका डैमेज है. तो इसकी वजह से क्या होगा? व्हाट वी कैन फाइंड इज इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी. ओके तो डिजीजेस उसका इंसिडेंस इनमें ज़्यादा है. ओके इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस जितने भी होंगे ये ऐसे बच्चों में ज़्यादा होंगे. ओके ड्यूरेशन ऑफ डिजीज अगर हम देखते हैं तो ड्यूरेशन इनमें लॉन्गर रहेगा, डिजीज की सिवियरिटी भी ज़्यादा रहेगी. ओके सो इंक्रीज्ड इंसिडेंस, increased duration, increased severity of disease that can happen in the children. Further, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? It will affect appetite. ओके इन बच्चों का appetite कम रहेगा, न्यूट्रिएंट का इंटेक कम है. ओके जो फूड बोल रहे उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं रहेगा. ओके मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड है, वापस से एपेटाइट कम हो गया. ये सब चीजें हैं, जो डाइट का इंटेक है वो इनएडिक्वेट रहेगा. ओके सो दिस इज माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन साइकिल. What other factors are there which can contribute to this condition? ओके तो सबसे पहले हमने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड गैप. ओके उसके बाद हमने बोला है इन्फेक्शंस है. उसके साथ साथ देर आर अदर सोशल फैक्टर्स विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस कंडीशन. ओके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मैटरनल हेल्थ. ओके तो पुअर मैटरनल हेल्थ है तो पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर है तो मदर का पूरा हेल्थ स्टेटस कैसा है, मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज कंसर्न विद द अंडर न्यूट्रिशन. ओके तो दूसरा जो है हमें देखना है फैमिली साइज. ओके लार्ज फैमिली साइज है तो इवन दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर. ओके एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस. टू बी स्पेसिफिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ सर्विसेज. ओके एनवायरमेंटल हेल्थ सर्विसेज कैसे है, जैसे कि उनको सेफ वाटर मिल रहा है या नहीं. ओके सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है. दूसरा जो है सैनिटेशन फैसिलिटीज. ओके सीवेज डिस्पोजल फैसिलिटीज ये अवेलेबल है या नहीं है. ओके सो दिस विल हैव इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन दीज थिंग्स. या अनदर इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट वी कैन फाइंड इज फेलियर ऑफ लैक्टेशन. ओके तो मदर को फेलियर ऑफ लैक्टेशन है. ओके जिसकी वजह से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलेगा. या फिर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को अर्ली टर्मिनेट कर दिया गया है. ओके प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग 6 महीने के बाद हमें सप्लीमेंटरी फूड देना है. वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू वीनिंग. ओके तो ये वीनिंग अगर इम्प्रॉपर है तो ओके इम्प्रॉपर वीनिंग बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है दिस इज व्हाट, दिस इज ओवर डाइल्यूशन ऑफ काउस मिल्क. ओके तो बच्चों को दूध तो देते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम पानी डाल देंगे ओके तो क्या रहेगा, न्यूट्रिएंट बेबी को कम मिलेंगे. ओके एंड कुछ कुकिंग प्रैक्टिसेस है, देर आर सो मेनी कुकिंग प्रैक्टिसेस विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ओके या फिर दूसरा जो फैक्टर है रिलेटेड टू वीनिंग, वीलिंग का जो हमने स्टार्ट किया है ओके उसमें हमने डिले किया है. ओके सो डिलेड वीनिंग, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके तो यहाँ पे मदर का हेल्थ हमें देखना है, फैमिली का साइज हमें देखना है, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, कौन से हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है ये हमें देखना है. ब्रेस्ट फीडिंग इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वीनिंग. ओके तो कुछ वर्ड्स में कुछ कीवर्ड्स है. तो मदर का हेल्थ है, लार्ज फैमिली साइज है, ओके ब्रेस्ट फीडिंग है एंड वीनिंग है.
Am I audible to all of you? Am I audible? Yes. Please. Okay, thank you. Please be in touch with me because I'm today having great network issue. Yeah. Second important thing. Now, if we talk about nutritional status of a child, okay. So nutritional status अगर बच्चे का हमें देखना है तो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ओके। एंड उसका जो लिंक है, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उसका जो क्लोज लिंक है, इट इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर एंड द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर, ओके। तो बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे रहेगा, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो है मदर, ओके। तो मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होना बहुत इसेंशियल है, मदर का हेल्थ स्टेटस अच्छा होना बहुत इसेंशियल है। अगर इफ दिस इज अफेक्टेड, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फेस मोर एंड मोर प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। सो हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो मदर के हेल्थ स्टेटस के ऊपर या न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। तो अभी हम इसमें क्या देखेंगे, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच जनरेशंस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, इसका इन्फ्लुएंस होने वाला है आगे आने वाले जनरेशंस के ऊपर, ओके। तो हियर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द मदर, ओके, तो राइट साइड से आपको देखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ओके। प्रेगनेंसी देखना है, लैक्टेशनल पीरियड देखना है। सेकेंडली व्हाट वी कैन से, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ लैक्टेटिंग वुमेन, ओके। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ लैक्टेटिंग वुमन। इसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर होने वाला है, नियोनेट्स एंड इन्फेंट्स, ओके। दिस इज गोइंग टू अफेक्ट नियोनेट्स। फर्स्ट 4 वीक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पूरा 1 साल है, ओके, इन्फेंसी पीरियड है, विच मे गेट अफेक्टेड, ओके। सो नियोनेटल एंड इन्फेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस विल गेट अफेक्टेड। आगे जाके हमारा फोकस रहेगा गर्ल्स के ऊपर, ओके। तो जितने भी बच्चे बड़े होंगे, तो जितने भी गर्ल्स है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ओके। और टू बी स्पेसिफिकली अगेन हमारा जो फोकस है वो प्यूबर्टी के फेज में, एडोलेसेंट्स के फेज में, ओके। सो न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो हर एक जगह पे अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है तो आगे आने वाले जनरेशन का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा, क्योंकि यही एडोलेसेंट गर्ल है, ओके, विच आर गोइंग टू एंटर इन दी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप, ओके। तो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में यही गर्ल्स जाएंगे, आगे जाके इनमें से ही कुछ प्रेग्नेंट होने वाले हैं, ओके। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। तो इसमें से आपको एक ही समझना है, एक जनरेशन का न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू बी स्पेसिफिकली फीमेल्स, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बर्थ till they enter into the reproductive age, they become pregnant. This is the most important thing which can decide the nutritional status of the next generation or the children. सो जो हमने प्रपोर्शन देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो मैनिफेस्टेशन है लेस देन 1%, जो टिप ऑफ आइसबर्ग है, इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय मैरास्मस एंड क्वेशियोरकर, ओके। तो फर्स्ट जिसमें आपको टाइटल नहीं दिखाई दे रहा है, वी आर कंसिडरिंग द फैक्टर। सेकेंड कॉलम का जो हेडिंग है वो मैरास्मस है, और थर्ड का जो है वो क्वेशियोरकर है, ओके। तो व्हाट वी सी, these are the extreme manifestations of protein energy malnutrition, okay। तो प्रोटीन एनर्जी malnutrition का जो एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है, इसे हमने बोला है मैरास्मस हो सकता है या फिर क्वेशियोरकर हो सकता है, ओके। तो क्लिनिकली आपको यहाँ पे क्या देखना है, मसल वेस्टिंग, ओके। तो हम क्या फीचर देखेंगे, मसल वेस्टिंग कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये हमें देखना है, ओके। तो मैरास्मस बेबी है तो आपको मसल वेस्टिंग देखते ही पता चलेगा, ओके। ये बच्चे को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये बेबी को मसल वेस्टिंग है, ओके। सेकेंडली इफ वी टॉक अबाउट क्वेशियोरकर बेबी, ओके, क्वेशियोरकर बेबी में रहता है बट मेनली दिस इज हिडन, क्योंकि ये बेबीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है इडिमा,
ओके, तो इडिमा की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देगा लेकिन रहेगा. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मसल वेस्टिंग. सेकेंडली इफ वी सी फैट वेस्टिंग. ओके, तो ये जो मैरास्मस के बेबीज है इनमें सबक्यूटेनियस फैट इज लॉस्ट. ओके, सो देयर इज सीवियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट. ओके, जो क्वैशियोरकर के बेबीज है इनमें फैट वेस्टिंग रहता है. ओके, फैट जो है वो रिटेन्ड है लेकिन जितना फर्मनेस चाहिए उतना नहीं रहता. ओके, सो फैट समटाइम्स इट इज रिटेन्ड बट इट इज नॉट फर्म. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर जो है वो है एडिमा. ओके, वो है एडिमा. एडिमा को अगर आप देखते हो तो मैरास्मस के बेबीज में कभी भी एडिमा नहीं रहेगा. ओके, इनमें एडिमा नहीं रहता है. एडिमा यू कैन फाइंड ओनली इन क्वैशियोरकर एंड मोस्ट कॉमनली आपको जो देखना है तो लेग्स के ऊपर है. ओके, कभी कभी फेस के ऊपर भी यू कैन सी इट. राइट. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो ग्रोथ के पैरामीटर्स है जो हमें देखना है. ओके, तो उनका वेट और हाइट. ओके, उनका वेट और हाइट है तो डेफिनेटली मैरास्मिक बेबी जो है उनका वेट और हाइट कम रहेगा. ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे भी कम है, वेट कम है लेकिन इडिमा की वजह से हमें जल्दी से समझ में नहीं आएगा. ओके, क्वैशियोरकर में. सेकेंडली मेंटली आपको मेंटली ये बच्चे कैसे हैं ये देखना है. ओके, तो मैरास्मस के बेबीज बहुत क्वाइट रहते हैं. ओके, दे आर क्वाइट बेबीज. लेकिन क्वैशियोरकर के बेबीज जो है वो मॉर्निंग कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, इरिटेबल है ये बेबीज. ओके, तो ये हमें देखना है. सेकेंडली आप अगर एपेटाइट पूछते हो इन बच्चों को तो मैरास्मस के बच्चों का एपेटाइट अच्छा रहता है. ओके, लेकिन क्वैशियोरकर बेबीज का एपेटाइट कम रहेगा. सेकेंडली डायरिया के बारे में हमें पूछना है. ओके, तो मैरास्मस में डायरिया बहुत कॉमन रहता है इन बेबीज को. पास्ट हिस्ट्री मिलेगी आपको डायरिया की या फिर करंट जो बेबी आपके सामने आएगा दैट मे कम विद द कंप्लेंट ऑफ डायरिया. Another important thing which is concerned here with kwashiorkor also. Okay, so even kwashiorkor babies may frequently suffer from diarrhea. Okay, the next thing what we are supposed to see is the skin changes, hair changes and liver enlargement. ओके, तो ये सब है, ये सिर्फ आपको क्वैशियोरकर में दिखाई देंगे. ओके, तो क्वैशियोरकर बेबीज में डिफ्यूज पिगमेंटेशन रहता है. ओके, कभी कभी फ्लैकी पेंट डर्माटोसिस भी हो सकता है. उनके हेयर्स स्पार्स रहेंगे, इजीली पुल आउट हो सकते हैं ये. ओके, एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज हिपैटिक एनलार्जमेंट. ओके, तो कभी कभी लीवर एनलार्जमेंट आपको दिखाई देगी, हिपैटोमेगाली यू कैन सी. ओके, एंड व्हाई इट हैपेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट. ओके, तो फैट एक्यूमुलेट होने वाला है जिसकी वजह से हिपैटिक एनलार्जमेंट यू कैन सी. ओके, कुछ टेस्ट अगर हम करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वैशियोरकर के लिए सीरम अल्बुमिन लेवल जो कम रहेगा. ओके, जो हमें देखना है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यूरिनरी यूरिया पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन ये भी लोअर्ड है. ओके, हाइड्रोक्सीप्रोलिन क्रिएटिनिन रेशो ये लोअर्ड है. ओके, प्लाज्मा अमाइनो एसिड रेशो इट इज एलिवेटेड इन क्वैशियोरकर बेबीज. ओके, सो दिस इज द सेम चार्ट which is given in KPAC. You all please permit me to end this meeting and please rejoin.
Am I audible? Am I audible to all of you? Thank you. Thank you. Okay. So this is the image that you can see here. Kwashiorkor baby. Okay. Please note the presence of edema. Marasmus का बेबी है. मसल वेस्टिंग इज वेरी एविडेंट. ओके, यहाँ पे मसल वेस्टिंग आपको दिखाई देगा. ओके, so all these things what are given in the chart already we have discussed it. Okay, so kwashiorkor में protein deficiency is most important thing. And when we talk about the marasmus, okay, so there is food deficiency, so there is deficiency of proteins, there is deficiency of calories also. ओके, तो क्वैशियोरकर जो हमें दिखाई देता है बहुत कॉमन एज ग्रुप है उसके लिए 6 months to 3 years. ओके, मैरास्मस इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ओके, सबक्यूटेनियस फैट है यहाँ पे प्रिजर्व्ड है, सबक्यूटेनियस फैट इज लॉस्ट. ओके, मैरास्मस का बेबी देख के ही आपको पता चलेगा. ओके, तो यहाँ पे इडीमा, क्वैशियोरकर में इडीमा है. ओके, मैरास्मस में इडीमा नहीं है. ओके, तो लीवर का एनलार्जमेंट मिलेगा आपको. किस में मिलेगा? क्वैशियोरकर के बेबीज में एनलार्जमेंट ऑफ लीवर यू वोंट सी इन मैरास्मस बेबी. ओके, तो जो फैटी लीवर है क्वैशियोरकर में है, फैटी लीवर मैरास्मस में नहीं है. ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, मसल वेस्टिंग है तो रिब्स का प्रोमिनेंस जो है वो क्वैशियोरकर में नहीं है. प्रोमिनेंट रिब्स यू कैन सी इन मैरास्मस. ओके, जो बेबीज है, ओके, लिथार्जिक बेबीज है क्वैशियोरकर के. ओके, यहाँ पे जो बेबीज हैं मैरास्मस के यू कैन सी दे आर अलर्ट. ओके, तो वो अलर्ट रहते हैं जब भी आप देखोगे तो. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अपेटाइट. ओके, क्वैशियोरकर में अपेटाइट रिड्यूस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए. मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग बेसिकली दोनों में है, लेकिन यहाँ पे मसल वेस्टिंग क्वैशियोरकर में है तो भी ईडिमा की वजह से यू कांट नोटिस इट. ओके, यू वोंट बी एबल टू नोटिस इट ड्यू टू ईडिमा. Yeah. Another important thing, how we are going to classify protein energy malnutrition. Okay, so whenever we are using the terminology protein energy malnutrition, what it includes? It includes a wide spectrum. Okay, so there is wide spectrum of different conditions. तो one end पे उसमें क्या है? सिर्फ ग्रोथ फेलियर है. ओके, और एक्सट्रीम एंड, अदर एंड अगर आप देखते हो तो वहां पे क्वैशियोरकर और मैरास्मस है. तो अगर हमें अर्ली ढूंढना है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? वेदर द चिल्ड्रन दे आर ग्रोइंग प्रॉपरली और नॉट. ओके, तो ग्रोथ फेलियर है जो पहला मैनिफेस्टेशन है जो हमें देखना है, राइट. या फिर टिप ऑफ आइसबर्ग में लेस देन 1% केसेस हमें मिलेंगे जिनको क्वैशियोरकर या फिर मैरास्मस है. ओके, हमें ये क्यों क्लासिफाई करना है किसको ग्रोथ फेलियर है किसको नहीं है? ओके, क्योंकि जो कुछ भी हम इंटरवेंशंस लेंगे दैट विल डिफर. ओके, तो उस हिसाब से हमें इंटरवीन करना है. सो जो क्लासिफिकेशन है, द टर्मिनोलॉजीज दैट यू कैन सी हियर, गोमेज क्लासिफिकेशन एंड वाटरलॉज क्लासिफिकेशन. ओके, तो 25th एडिशन में ये टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज किए गए. ओके, तो जिनको याद रखना है वो रख सकते हैं, इवन इफ यू मेंशन डजेंट मैटर. ओके, तो गोमेज क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? बच्चे का वेट ठीक से बढ़ रहा है या नहीं, ये देखते हैं. ओके, वाटरलॉज क्लासिफिकेशन में हमारा फोकस कहाँ पे है? हाइट के ऊपर है. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें ये पता लगाना है कि जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है ये कंडीशन एक्यूट है या क्रॉनिक है. तो वेस्टिंग है तो एक्यूट है, स्टंटिंग है तो क्रॉनिक है. ओके, तो अभी हमें देखना है कम्युनिटी में प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन प्रेजेंट है या नहीं है. ओके, तो इसके लिए दिस इज कंसर्न विथ सर्टेन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट. तो हमें कुछ मेजरमेंट करने पड़ेंगे. ओके, तो 3 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स आर देयर विच इंक्लूड्स वेट. ओके, तो बच्चे का वेट ठीक से बढ़ रहा है या नहीं ये हमें देखना है. सेकेंडली हाइट हमें देखनी है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इट इज मिड आर्म सरकमफरेंस. ओके, तो 3 चीजें हम देखेंगे. तो वेट, अभी हमें जो वेट देखना है बेबी का, वी आर recording the weight in relation to age.
ओके, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बोला है, वेट फॉर एज। ओके, तो फॉर एज आगे क्यों आया है, एज के हिसाब से हम वेट देखने वाले हैं। ओके, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अफेक्टेड चाइल्ड है उसका वेट नॉर्मल चाइल्ड के साथ कंपेयर करना है। लेकिन हमने फॉर्मूला में क्या बोला है, वेट फॉर एज, तो दोनों बच्चों का एज सेम होना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे है वेट ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड। ओके, उसका कितना वेट है, हमारा डिनोमिनेटर है वेट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज। ओके, यहाँ पे जो यूनिट आप देख रहे हैं वो क्या है, परसेंट, तो परसेंट आएगा तो आगे मल्टीप्लायर 100। ओके, तो इज इट क्लियर हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट? Okay, don't forget to mention this formula if you get question on this. Okay, so this is very important aspect concerned with protein energy malnutrition. Okay, तो weight for age हमने देखा, weight of the child divided by weight of normal child of same age. Okay, so at the beginning only you remember what we are saying, this is weight for age. Okay, so that you can come to know how you are going to prepare the formula. Okay, तो इसके हिसाब से हमें इंटरप्रेट करना है। 90 से ज़्यादा अगर है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ओके, 60 से अगर कम है तो बेबी सीवियरली मालनरिश्ड है। ओके, और 60 टू 90 के बीच में अगर आता है तो इसमें माइल्ड और मॉडरेट, जो बीच का वैल्यू आपको लेना है वो 75 का है। तो आई जस्ट से यू टू रिमेंबर जस्ट 3 नंबर्स, 60, 75 एंड 90। ओके, तो 60 से कम है सीवियर माल न्यूट्रिशन। ओके, 60 से लेके 90 तक है। ओके, तो उसमें हमें माइल्ड और मॉडरेट को डिफरेंशिएट करना है। 75 तक हम बोलेंगे मॉडरेट है। ओके, और 75 से आगे है 90 तक है तो माइल्ड माल न्यूट्रिशन है। 90 से ज्यादा आ रहा है तो नथिंग टू वरी, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज गुड, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज गुड। ओके, अभी हमने क्या बोला, एक्यूट है या क्रॉनिक है माल न्यूट्रिशन, ये हमें देखना है। तो बेबी को स्टंटिंग है या वेस्टिंग है ये भी हमें देखना है। ओके, तो उसके लिए और 2 पैरामीटर्स हम यूज करेंगे। ओके, इसके लिए 2 more पैरामीटर्स वी विल यूज एंड दीज पैरामीटर्स, अभी हम क्या देखेंगे, वेट फॉर हाइट। ओके, एक पैरामीटर हम क्या लेंगे, वेट फॉर हाइट। ओके, तो वेट फॉर हाइट में हमें क्या देखना है, वेट ऑफ द चाइल्ड, जो अफेक्टेड चाइल्ड है उसका वेट लेना है। दूसरा नॉर्मल चाइल्ड के साथ हमें कंपेयर करना है। लेकिन वेट फॉर एज में हमने क्या बोला था, सेम एज के चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, सेम हाइट। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वेट फॉर हाइट। ओके, तो सिर्फ 2 वर्ड्स है, ये अगर आप समझते हो तो फॉर्मूला इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड of same height, multiplier is 100. Okay, secondly हम क्या देखेंगे, height for age. Now I don't think so कि I should have to repeat the formula. Okay, height for age ले रहे तो हमें क्या लेना है, height लेना है, और हमें consider क्या करना है, same age. Okay, तो same age के हिसाब से कितना height है, एक पैरामीटर हमने देखा, same age के हिसाब से कितना वेट है हमने ये देखा, और तीसरा हमने क्या देखा, सेम हाइट के हिसाब से कितना वेट है। ओके, आपको समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर? बिकॉज दीज फॉर्म्युले आर इम्पॉर्टंट, दॅट शुड बी देअर इन युअर आन्सर. कोणाला समजलं नाही असं आहे का? एकाच वयाच्या मुलांचं आपण वजन बघतोय, त्यांची हाईट बघतोय, आणि एकच हाईट, सेम हाईट असताना आपण वेट बघतो. ओके, सो दीज 3 पैरामीटर्स आर देयर. अभी हमें वेट फॉर हाइट और हाइट फॉर एज, दिस विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट वेदर द कंडीशन इज एक्यूट और क्रॉनिक. ओके, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एक्यूट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिंग. ओके, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टंटिंग. ओके, तो वेस्टिंग में बच्चे का हाइट बढ़ेगा लेकिन वेट कम रहेगा. ओके, और जब हम स्टंटिंग देखते हैं तो एज के हिसाब से हाइट कम रहेगा. Okay, so make it very clear, nutritional status we are going to interpret as stunting. Okay, stunting के लिए हमें देखना है height for age. Okay, vesting के लिए weight for height. Okay, तो ये जो पैरामीटर्स है these are in front of you. vesting के लिए 90 से ज़्यादा है तो हमारा बेबी नॉर्मल है.
ओके 70 से कम अगर हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली सीवियर वेस्टिंग है। ओके तो यहाँ पे बीच में 70 to 90 के बीच में हमें वापस क्लासिफाई करना है माइल्ड वेस्टिंग है या फिर मॉडरेट है। ओके तो 70 to 80 अगर हमें मिलता है तो मॉडरेट वेस्टिंग हम बोलेंगे। 80 to 90 में विल से दिस इज माइल्ड वेस्टिंग। 90 से ज्यादा आ रहा है तो बच्चा ठीक है। ओके सो अगेन 90 70 टू एटलीस्ट 2 नंबर्स यू कैन रिमेंबर। फॉर स्टंटिंग हमें क्या देखना है? फॉर स्टंटिंग वी आर सपोज टू सी 95। ओके तो यहाँ पे रेंज थोड़ा सा अलग है। 95 से ज्यादा है तो बच्चा नॉर्मल है। ओके और 80 से कम है तो सीवियर स्टंटिंग है। ओके बीच का जो वैल्यू है 80 से लेके 87.5 तक मॉडरेट स्टंटिंग है। 87.5 से लेके 95 तक माइल्ड स्टंटिंग है। ओके तो ये फिगर्स if at all you can memorize well and good, otherwise don't forget to mention the formulae, okay, because this is the most important parameter which we apply in practice. Okay so that's why you are supposed to know it. Yeah तो stunting में क्या होता है? What we can find is linear growth retardation. Okay so there is growth retardation which we can see over the longer period of time. Okay why it occurs? Stunting के लिए क्या है? So there is inadequate nutrition over a longer period. Okay one thing. दूसरे कौन से फैक्टर्स है विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टंटिंग? ओके रिकरेंट इलनेसेस है। एक तो बेबी को ठीक से फूड नहीं मिल रहा है ओके फॉर लॉन्गर पीरियड, उसके साथ साथ बहुत सारे इलनेसेस है, इन्फेक्शंस है। ओके और देयर कैन बी इवन क्रॉनिक इलनेसेस। And the most important thing, in which group we can suspect stunting? Okay so this is mainly poor people. So we can say poverty is another important factor which is concerned with the stunting. ओके स्टंटिंग समझना बहुत इसेंशियल है, इन बच्चों को आइडेंटिफाई करना बहुत इसेंशियल है, बिकॉज स्टंटिंग की वजह से क्या हो सकता है? इट डिलेज साइकोसोशल डेवलपमेंट, इट डिलेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके जो लर्निंग के साथ बच्चे का बिहेवियर रहता है, जो कुछ भी बच्चों ने सीखना चाहिए, लर्निंग बिहेवियर जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। एंड स्कूल परफॉर्मेंस मावशी जरा कमी बोला, हळू आवाजात बोला। and school performance can get affected. Okay so what we can say, these are, it may delay the psychological development, it can affect cognitive development, or it can lead to poor school performance. वेस्टिंग इज व्हाट? दिस इज एक्यूट कंडीशन। अभी आपको पता है जब हम वेस्टिंग बोलते हैं तो ये एक्यूट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट, वेट लॉस इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट हाइट इज नॉर्मल। ओके तो ये बच्चों का सिर्फ वेट ठीक से नहीं बढ़ने वाला है। ओके दैट्स व्हाट वी कैन से। अनदर important thing is, what are the various causes of wasting? What are different causes of wasting? So inadequate food intake is definitely one of the important cause. Secondly, incorrect feeding practices. Okay जो feeding practices है वो inappropriate है, बच्चे को diseases है, infections है, और what can happen? All these factors may combine with one another and it can cause wasting. ओके तो स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, समझ में आया है? वन इज क्रॉनिक कंडीशन, वन इज एक्यूट कंडीशन। ओके या थर्ड पैरामीटर हमने क्या देखा? अभी हम जब मेजरमेंट करते हैं तो हमने वेट फॉर एज देखा, हाइट फॉर एज देखा, वेट फॉर हाइट देखा। ओके 3 पैरामीटर्स देखे जिससे हमें पता चलेगा बेबी को माल न्यूट्रिशन है या नहीं है, और अगर है तो वो एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। ओके तो उसके साथ साथ और एक पैरामीटर हम यूज करते हैं, दिस इज मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस। हमें यहाँ पे क्या करना है? आर्म का सर्कमफरेंस लेना है। ओके तो ये जो पैरामीटर है ये हम इन्फेंट्स के लिए नहीं यूज करेंगे। ओके तो इन्फेंट्स के लिए ये पैरामीटर नहीं है। ओके
इससे हमें क्या पता चलने वाला है, सो वी कैन एस्टिमेट द मसल मास। ओके, तो मसल मास कैसा है, ठीक है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा। ओके, तो जब भी हम मिड आर्म का सरकमफरेंस लेंगे, ओके, तो अगर हमें 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वैल्यू मिलती है तो हमारा इंटरप्रिटेशन रहेगा बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। ओके, यहाँ पे यूनिट अलग है, पहले सब के लिए हमने परसेंट में देखा था, यहाँ पे सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं। 13.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सरकमफरेंस है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इज गुड। ओके, 12.5 और 13.5 के बीच में अगर मिलता है तो माल न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। ओके, इट इज माइल्ड टू मॉडरेट। ओके, और 12.5 से कम मिल रहा है तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ सीवियर माल न्यूट्रिशन। ओके, तो दो ही नंबर है जो आपको याद रखने हैं। ओके, 13.5 से ज्यादा है, अच्छी बात है, हमारे बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। से कम है तो डेफिनेटली वी शुड बी वरीड, वी शुड हैव टू टेक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशंस, क्योंकि सीवियर माल न्यूट्रिशन है। बीच में है तो हम कैटेगराइज करने वाले हैं माइल्ड टू मॉडरेट। ओके, तो हमें कुछ डिवाइस चाहिए मिड आर्म सरकमफरेंस यूज कर मेजर करने के लिए। ओके, तो जो यूज करते हैं ये शाकिर टेप है। ओके, आपको स्पॉटिंग एग्जाम में रखा जा सकता है इमेज, सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। ओके, तो इसका नाम है शाकिर स्टेप, जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो फील्ड में यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे 3 कलर के ऊपर आपको फोकस करना है। आपको एक रेड कलर, एक येलो कलर और एक ग्रीन कलर दिखाई देगा। ओके, इसे हम फोल्ड करके हमें सरकमफरेंस मेजर करना है। ओके, तो यहाँ पे मिड आर्म सरकमफरेंस आपको मेजर करना है। ओके, मेजर करने के बाद जो वैल्यूज हमें मिलने वाली है उसे हमें इंटरप्रीट करना है। ओके, तो वंस अगेन आई रिपीट, शाकिर टेप ये आइडेंटिफिकेशन है। ओके, अगर आपको स्पॉटिंग में आता है तो यू आर गोइंग टू राइट दिस एज शाकिर टेप और शाकिर स्टेप। ओके, इसका यूज क्या है, वी आर यूजिंग दिस टू डायग्नोज द प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ओके, अंडर न्यूट्रिशन हमें पता चलने वाला है, राइट? तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, वी आर सपोज टू मेजर मिड अपर आर्म सरकमफरेंस। ओके, हमें जो मेजर करना है वो मिड अपर आर्म सरकमफरेंस लेना है। ओके, तो अगर रेड के यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है, मतलब जो कुछ भी फील्ड वर्कर्स है जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनको ये सिखाया जाता है, तो रेड कलर में है तो डेफिनेटली इवन इफ दे वोंट बी एबल टू सी दी पर्टिकुलर नंबर, दिस सजेस्ट दैट 12.5 से कम है। ओके, तो बच्चे का वेट ठीक नहीं है। ओके, वेस्टिंग है। येलो में आता है तो माइल्ड टू मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन है, और ग्रीन में अगर आता है मिड आर्म सरकमफरेंस तो हेल्थ वर्कर्स दे आर हैप्पी। व्हाई दे आर हैप्पी, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस बेबी का अच्छा है। ओके, सो ट्राई टू पे अटेंशन टुवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन of this device, okay, its use and its interpretation. Yeah, one more terminology is there, that is severe acute malnutrition. Okay, SAM. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ऑब्जर्व वेट है दिस इज -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ऑफ द मेडियन। तो यहाँ पे WHO के जो ग्रोथ स्टैंडर्ड्स दिए हैं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, हमारा वैल्यू जो है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन का है, या फिर जो अभी हमने अभी देखा मिड आर्म सरकमफरेंस लेते हैं तो इफ इट इज लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। ओके, 11.5 सेंटीमीटर से अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। ओके, प्लस कुछ बच्चों में व्हाट यू कैन सी इज न्यूट्रिशनल एडिमा। ओके, now one thing to make it very clear, severe malnutrition it differs from chronic malnutrition. Okay, typing mistake है, chronic malnutrition double type हुआ है यहाँ पे। Okay, so just ignore that. Second thing, what is the characteristic feature when we say there is severe acute malnutrition? Okay, so it is characterized by stunting also. ओके, एंड हमारे हिसाब से क्या समझना इम्पोर्टेंट है, बेसिकली दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है ये लाइफ थ्रेटनिंग है,
ऐसे बच्चों को हमें अर्जेंटली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट देनी है. Okay, so it is very essential to identify babies having severe acute malnutrition. Okay, इनके लिए urgent intervention is very very essential. Yeah, क्यों essential है? Because this is the condition which can contribute to the death in under 5 age group, or it can increase the risk of death in this age group. Okay, so basically मॉर्टेलिटी ज़्यादा और कब बढ़ेगी? सिर्फ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो भी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर ये बेबीज़ को न्यूमोनिया है, अगर ये बेबीज़ को डायरिया है, तो अगेन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी. ओके, तो बच्चे के डेथ की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी. सेकेंडली, इफ वी कंपेयर the mortality with well-nourished children, what are the findings? Okay, so जो बच्चे हैं with severe wasting, severe acute malnutrition, उनमें जो डेथ रेट है this is 9 times, they are having 9 times increased risk of death as compared to well-nourished children. ओके, तो जिनका न्यूट्रिशन, जिन बेबीज का अच्छा है, उनका सर्वाइवल रेट वी कैन से सिंपली वो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन अगर अंडर नरिश चाइल्ड है, सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, तो 9 times देर इज मोर पॉसिबिलिटी दैट सच बेबीज कैन डाई अप टू द एज ऑफ 5 years. या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिवेंट दिस. ओके, तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? सो फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सजेशंस दैट आर गिवन बाय FAO एंड WHO एक्सपर्ट कमिटी. ओके, ये जो 8th एक्सपर्ट कमिटी थी ऑन न्यूट्रिशन, इन्होंने क्या सजेस्ट किया है, कौन सा क्राइटेरिया बोला है? ओके, तो द हेडिंग शुड नॉट चेंज. ओके, सो डोंट फॉरगेट हियर द हेडिंग हेल्थ प्रमोशन. ओके, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपके आंसर में इस हेडिंग के हिसाब से ही आना चाहिए. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन हेल्थ प्रमोशन. ओके, हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करेंगे? सो वी आर टेकिंग डिफरेंट मेजर्स. ओके, तो जो कुछ भी मेजर्स है हमारे पास इन रिलेशन टू हेल्थ प्रमोशन, तो ये किसके पास हमें पहुंचाने हैं? ओके, सो दीज मेजर्स दे आर मेनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग वीमेन. ओके, क्योंकि जो हमने डायग्राम देखा था, ओके, तो एक जनरेशन का इम्पैक्ट होने वाला है दूसरे जनरेशन के न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर. तो हमारा फोकस यहाँ पे किसके ऊपर होगा? Our focus will be on pregnant and lactating women. Okay, so what these measures includes? So it mainly includes education. Okay, तो ये मदर्स को हमें एजुकेट करना है. ओके, न्यूट्रिशन एजुकेशन देना है, जो हमने देखा आंगनवाड़ी के वर्कर्स देते हैं थ्रू ICDS. ओके, सेकेंडली फूड सप्लीमेंटेशन देना है. ओके, सो फूड सप्लीमेंटेशन इज इसेंशियल टू दिस vulnerable एज ग्रुप. ओके, उसके साथ साथ प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, देन जो कुछ भी वीनिंग फूड्स है इट शुड बी अवेलेबल एट लो कॉस्ट. ओके, तो अगर लैक्टेशनल फेलियर होता है, ओके, मदर को मिल्क नहीं है, तो इन दैट केस ओके, बेबी को हमें आर्टिफिशियल फूड के ऊपर भी रखना पड़ता है, तो उसका भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है. और जो वीनिंग फूड अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी कॉस्ट ज़्यादा रहता है. तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, एज फार एज पॉसिबल लो कॉस्ट वीनिंग फूड शुड बी अवेलेबल. ओवरऑल हमें क्या करना है? हर एक फैमिली का डाइट इम्प्रूव करना है. ओके, तो हर एक फैमिली मेंबर को न्यूट्रिशियस डाइट मिलना चाहिए. सेकेंडली, न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो यहाँ पे वापस हमारा फोकस रहेगा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन. ओके, तो अप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस उसे हमें सिखाने हैं. यस, पॉपुलेशन कंट्रोल एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, सेम वे हियर ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल. फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ स्पेसिंग के ऊपर हमें फोकस करना है. ओके, इसके साथ साथ होम इकोनॉमिक्स एंड फैमिली एनवायरनमेंट. फर्स्ट हेडिंग हमने बोला था हेल्थ प्रमोशन. सेकंड जो सजेशन दिया है ये कमिटी ने, दैट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. तो अभी हमें क्या करना है? जो
वल्नरेबल ग्रुप है अभी, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे, उन्हें हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देंगे। ओके, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारा फोकस कहाँ पे है? आवर फोकस इज मेनली ऑन दी डाइट। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं, अभी पूरे फैमिली के ऊपर हमें नहीं फोकस करना है, अभी हमारा फोकस सिर्फ वल्नरेबल एज ग्रुप के ऊपर है। और आपको पता है वल्नरेबल एज ग्रुप में मेनली चिल्ड्रन आते हैं। ओके, और चिल्ड्रन में भी आपको ज़्यादा फोकस करना है अंडर 5 एज ग्रुप के ऊपर। ओके, तो चाइल्ड के डाइट पे हमें फोकस करना है। और जो कुछ भी डाइट है, हमने क्या बोला, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो अभी का न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कॉज देखते हैं, तो वो क्या है? व्हाट इट इंक्लूड्स? डेफिशिएंट इनटेक है फूड का और एनर्जी कंजम्पशन कम है। तो हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? Okay, whatever diet, whatever food that is given to the child, okay, it should contain enough quantity of protein and it should contain enough quantity of energy. Okay, तो एनर्जी रिच फूड देने हैं, प्रोटीन रिच फूड देने हैं हमें बच्चों को। ओके, तो उसमें मिल्क है, एग्स है, फ्रेश फ्रूट्स है। ओके, सो वट एवर डिफरेंट थिंग्स आर देयर विच आर कंसर्न विद दी energy and which are concerned with the protein, okay, that should be given. तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमने एक कॉज कवर किया है। ओके, तो जो कॉज में हमने बोला था डेफिशिएंट इनटेक है, ओके, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरीज की डेफिशिएंसी है। सी द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनेटरी, वी आर सेइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो एक इसमें प्रोटीन आया है, दूसरा एनर्जी आया है। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमने बच्चों के ऊपर फोकस करना है, प्रोटीन रिच देना है, एनर्जी रिच फूड देना है। ओके, टाइटल अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन दिस। सेकेंड कॉज में हमने क्या बोला था? अनदर जो विसियस साइकिल है, ये क्या है? माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन। ओके, तो ये विसियस साइकिल जैसे चलता रहेगा वैसे ही प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। तो ये साइकिल को हमें ब्रेक करना है, राइट? ये साइकिल को हमें ब्रेक करना है। ये हम कैसे ब्रेक करते हैं? इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ओके, तो इन्फेक्शंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? ओके, तो डेफिनेटली, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी कैन यूज फॉर प्रिवेंशन। ओके, इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंट करना है तो हमारे पास बहुत अच्छा वेपन है, वो है वैक्सीन का। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ओके, तो अगर हम बेबीज का 100% इम्यूनाइजेशन कवरेज रखेंगे तो इन्फेक्शंस कम होने वाले हैं। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस को हम कम कर सकते हैं, डिफ्थेरिया है, पर्ट्यूसिस है, ओके, जिसे हम कम कर सकते हैं, पोलियोमाइलिटिस है। जितने भी वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी वैक्सीन्स हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक से होता है, ओके, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि दे आर नॉट गिविंग इट टू दी बेबीज। ओके, वैक्सीन नहीं देते हैं, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। ओके, तो सेकेंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारा फोकस है इम्यूनाइजेशन के ऊपर। थर्ड है फूड फोर्टिफिकेशन। नाउ आई थिंक फूड फोर्टिफिकेशन ऑल ऑफ यू नो, सो आई वोंट गो इन डिटेल्स ऑफ दिस। थर्ड थिंग व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना है। ओके, तो अर्ली डायग्नोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल हमें ये बच्चे ढूंढने हैं जिनको ग्रोथ फेलियर है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है? बच्चे का वेट ठीक से नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद हाइट विल गेट अफेक्टेड। ओके, तो वेट के फेज में ही अगर हम कैच करते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर अस। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बेबीज का ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। ओके, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए ग्रोथ चार्ट्स हम यूज करते हैं, लेकिन ग्रोथ चार्ट के बारे में यू आर गोइंग टू स्टडी इन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। ओके, जो इंटरेस्टेड है वो आज ही पढ़ सकते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, सेकेंडली हमें कहाँ पे फोकस करना है? डायरिया के ऊपर। ओके, तो डायरिया से हमें बच्चों को बचाना भी है। ओके, और जिस किसको हो जाता है अर्ली डिटेक्शन है, और डायरिया हमने पूरा पढ़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है हमारे पास रिहाइड्रेशन। ओके, रिहाइड्रेशन कैसे कैसे करते हैं आपको पता है, रिगार्डिंग ORS एवरीथिंग वी हैव टॉक्ड। ओके, तो अर्ली रिहाइड्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डायरिया इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सेकेंड हमें क्या करना है? जितने भी सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स है उसके ऊपर फोकस करना है। ओके, और डीवर्मिंग, इवन डीवर्मिंग वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। ओके, फाइनली जो लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज रिहैबिलिटेशन।
ओके, तो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हमें देने हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, जो भी बच्चे हैं जिनको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है उनकी तरफ हमें अर्जेंटली फोकस करना है। ओके, तो ये बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ये बच्चों के लिए हमारे पास रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होनी चाहिए। ओके, और हॉस्पिटलाइज करने के बाद अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देने के बाद उनका फॉलोअप भी हमें रखना है, फॉलोअप केयर भी हमें लेनी है। Okay, so these are four important things that are concerned with the prevention: health promotion, specific protection, early diagnosis and treatment, and fourth one is rehabilitation. Okay, so now I request Ruman, please start with attendance. Ruman, are you there? Ruman, are you there? हाँ हाँ हाँ. Okay, 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 okay. Absent. I can see her name. I can see her name. Absent है शायद. Adipa, she joined. She joined. Joined with it. हाँ. Okay. एब्सेंट है. एब्सेंट है. एब्सेंट है. एब्सेंट है. एब्सेंट है.
ओके ओके। नहीं है शायद, एब्सेंट।